physical chemistry. In the last lecture, we talk about elevation, that lowering of the vapor pressure, Raoult's law. Then we have talked about two methods we have seen to study the relative lowering of the vapor pressure. Then we have talked about the elevation in the boiling point, then the diffraction in the freezing point, and then we talk about that particular your osmotic. Then today we have to see the Van 't Hoff factor and all these things. Then how we can determine the molar mass from this particular osmotic pressure. Just I'm sharing the screen, sharing the file. Okay, it is visible. Yes or no? Yes, sir. ओके ओके ओके, कारण की आवाज येत नाही म्हटलं काय झालं. नाही सर, रेंजचा प्रॉब्लेम आहे जरासा. हा, ते मुरुड मध्ये प्रचंड प्रॉब्लेम आहे. माझं तर ते सीमच चालत नाहीये आयडियाचं. But see here, Van 't Hoff factor I. Now we have to talk about the Van 't Hoff factor I. In order to account for the discrepancy or abnormal result which is encountered when the solid is an electrolyte, Van 't Hoff introduce a factor I known as the Van 't Hoff factor. अभी Van 't Hoff factor क्या है कि अगर कोई abnormality है या discrepancy आती है ऐसे में, तब उसको आउटकम्स, उसका आउटकम्स को रिलेट करने के लिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है Van 't Hoff ने, तो उसे Van 't Hoff फैक्टर ही कहा जाता है. इट्स डेफिनेशन इज गिवन. Van 't Hoff फैक्टर की डेफिनेशन है ये. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो. It is defined as the ratio of observed value of colligative property, उसे हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, टू द थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड और आइडियल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्या है ये Van 't Hoff फैक्टर? क्या है? इट इज नथिंग बट द कोरिलेशन. क्या का कोरिलेशन है? सिंपली द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वैल्यू Okay, then I is equal to delta TB observed divided by delta TB calculated. ये क्या है? delta TB क्या है? elevation, boiling point elevation. delta TF क्या है? diffraction in freezing point. और ये आपका जो pi, it is in pi. तो ये this is in pi. A pi observed पाई कैलकुलेटेड. ऐसे ये तीनों प्रॉपर्टीज के लिए आप आई फैक्टर निकाल सकते हैं या Van 't Hoff फैक्टर स्टडी कर सकते हैं. कैसा स्टडी कर सकते हैं? तो बाय रिलेटिंग, बाय टेकिंग द रेशियो. रेशियो किसका लेंगे? ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड और से थ्योरेटिकल और से एक्सपेक्टेड वैल्यू. देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग? अब ये क्यों जरूरी है? तो देखो, इफ आई इज इक्वल टू 1, अगर Van 't Hoff फैक्टर का आंसर अगर 1 आता है ऐसे में, तो क्या कहता है? when solid is a non-electrolyte and it shows the ideal behavior. Example दिया urea in water and the glucose. I is equal to 1, that is pi observed is equal to pi calculated, that is a molecular weight observed is equal to molecular weight calculated. ये molecular weight को short form में लिखा है. Okay, then I, अगर I ये 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब है when solid particle associate in the solution. जब एसोसिएशन होता है सॉलिड पार्टिकल का सॉल्यूशन में, तब I की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है. एग्जांपल जो दिया है आपको, बेंजोइक एसिड. ओके, द बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एंड स्टार्च.
ओके, सॉरी, i इज लेस देन 1 है पहली केस, ये वाली जो केस है i इज लेस देन 1 में, और i इज ग्रेटर देन 1 when solute is an electrolyte which dissociates in the solution। जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपको पता है वो कंप्लीट डिसोसिएट्स होगा इन द सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, एट दैट टाइम i की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा रहेगी। ओके, then determination of the molar mass of solid from the osmotic pressure measurement, it is used to determine the molecular weight of macromolecule like the proteins। अब ये जो चीज है osmotic pressure है, macromolecule मतलब जैसे कि आपके अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन है, इसे क्या कहा जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल। में इनका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए ये जो है वेंटॉप, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। एंड वी नो द वेंटॉप्स इक्वेशन। वेंटॉप इक्वेशन क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर पाई इज इक्वल टू NP by V एंड पाई इज इक्वल टू N2 by V into RT, where N2 is the number of moles of solute, V is the volume, but N2 is equal to W2 upon M2। ये सारी चीजें फिर से वही आती है, where W2 is the weight of the solute and M2 is the weight of the that particular weight और से molar mass of the solute। pi is equal to भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट आप इससे ऑस्मोटिक प्रेशर से स्टडी करेंगे। ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ डिराइव द वेंटॉप इक्वेशन एंड हाउ इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन द मोलार मास और से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉलिड। अभी इसके लिए अलग अलग दो है, एक बार्कली है और दूसरा में हमें एक कंसेप्ट देखना है, दैट इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके पहले बार्कली हार्टली मेथड जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। मतलब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको ये करना है, स्टडी करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है, तो उसके लिए ये मेथड यूज की जाती है, बार्कली हार्टली मेथड। Barkley-Hartley method. The principle of this method is to apply the external pressure on the solution just enough to prevent osmosis, and the apparatus used was called as the osmometer, which is shown in the figure। ये जो है इसे क्या कहते हैं, osmometer। अब इसमें क्या क्या रहता है, you can see here in the osmometer, यहाँ पे पिस्टन है, प्रेशर है, सॉल्यूशन के ऊपर पिस्टन रखा है क्योंकि प्रेशर अप्लाई करना है। यहाँ पे कैपिलरी इंडिकेटर है, यहाँ पे आप देखेंगे वाटर रिजर्वायर है। असल में इधर पोरस दैट पर्टिकुलर पोरस पोर्सिलिन ट्यूब है विद द SPM, मतलब क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, porous porcelain tube with the semi permeable membrane। SPM is nothing but the semi permeable membrane। This is that all particular that part or say portion inside this tube is coated with this metallic, उसे मेटालिक जैकेट कहते हैं। असल में ये ऑस्मोटोमीटर दैट ऑस्मोमीटर है जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर आप मेजर करेंगे। अब इसमें क्या आएगा, इट कंसीडर द पोरस पोर्सिलिन ट्यूब विद द कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन डिपॉजिटेड ऑन इट्स वॉल व्हिच इज then enclosed in a method, which is then enclosed in the metallic jacket। One end of the tube is fitted with the reservoir of the pure solvent, say water, and the capillary tube at the another end। एक पे capillary था, एक पे reservoir था। The jacket is filled with the solution whose osmotic pressure is to determine। जिसका आपको osmotic pressure study करने का, उससे क्या करेंगे आप, solution उस अंदर fill up करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द मैकेनिकल प्रेशर कैन बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द पिस्टन कनेक्टेड टू अ प्रेशर गॉग। वो जो आपको पिस्टन दिखाया है उससे क्या करेंगे आप, प्रेशर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल। वाटर फ्रॉम द पोरस पोर्सिलिन ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन इन द जैकेट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब टू फॉल डाउन। क्या होगा, अभी देखो आपने प्रेशर अप्लाई किया, बराबर है, तो वाटर फ्रॉम द पोरस पोर्सिलिन ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन इन द जैकेट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसका रिजल्ट क्या होगा, कैपिलरी की लेवल क्या होगी, कम होगी। एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द पिस्टन टू such an extent that the water level in the capillary tube does not change, and the magnitude of the pressure applied can be read from the pressure gauge। The pressure is equal to osmotic pressure। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम इतना अप्लाई करने वाले हैं कि जो वाटर लेवल है कैपिलरी की वो चेंज नहीं होना चाहिए, और जो कुछ भी वैल्यूज आने वाली है, जो कुछ भी प्रेशर की वैल्यू आने वाली है, जो कुछ भी मैग्नीट्यूड आने वाली है, वो क्या होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। समझा, ये है आपका सिंपली बार्कली मेथड, वेरी सिंपल है। 5 मार्क का क्वेश्चन आपको इस मेथड पे आ सकता है। Okay, now we will talk about
व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर तो उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज ऑफ द इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। एमसीक्यू के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन आता है। ओके देन ऑस्मोटिक का ऑस्मोसिस के रिवर्स मतलब एग्जैक्ट अपोजिट में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। आपका जो मतलब घर में जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए प्यूरिफायर रहते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म रिवर्स ऑस्मोसिस। ऐसे में उसमें क्या रहता है? रिवर्स ऑस्मोसिस रहता है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द व्हेन प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर द सॉल्वेंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको मालूम है कि आपको प्योर वाटर चाहिए तो आप क्या करते हैं? वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है। ओके फिगर आपको यहाँ दिखाई है, पहले सिंपल ऑस्मोसिस दिखाया है और यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस दिखाया है। डायरेक्शन देखना है कि कहाँ से फ्लो होता है। अभी ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में चला जाता है और यहाँ पे क्या सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट में आएगा, मतलब प्योर होते जाएंगे। इन above figure water is kept on the one side of the SPM and solution on the other side. Under normal osmosis water crosses the membrane into solution. In reverse osmosis pressure is exerted on the site of the solution. यहाँ पे solution के side पे pressure exert करेंगे तो this pressure forces the water molecules from the solution into water across the SPM leaving behind all the dissolved salt. फिर उसमें से प्योर वाटर वहां से क्या करेगा? सॉल्वेंट में चला जाएगा। जितने भी impurities है वो सॉल्यूशन में रहेंगे। The amount of pressure required depends on the salt concentration in the solution. जितना concentration रहेगा उसके ऊपर प्रेशर की रहेगी। ओके दिस इज अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस। बाद में हम वो देखेंगे कि व्हाट इज आरओ सिस्टम जो हमारे घर में हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अच्छा है पार्ट है, आप खुद से लिख सकते हैं इसमें, मतलब ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। ऐसे में यू कैन राइट ऑन योर ओन। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मतलब यू कैन राइट ऑन योर ओन आल्सो, जैसे कि नोट्स में दिया वही लिखना जरूरी नहीं है। आई विल शेयर दैट ऑल द सॉफ्ट कॉपीज विथ यू इन द पीडीएफ फॉर्मेट, क्योंकि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स रहती है नोट्स में, कोई कुछ चेंजेस किया मैंने अभी आपके सामने करते रहता हूँ तो दैट यू कैन सी इजीली। ओके थैंक यू। वी विल स्टॉप हियर।